نہیں ہو رہی نا، بیسیکلی تو یہی سمجھ جاتا ہے نا. اگر دیگر بھی آپ لوگوں نے اور تذکرہ کیا، کسی نے باڈی ویٹ کا ذکر کیا اور آپ نے لائف سٹائل کی بات کر لی، تو ایسے فیکٹرز بھی شامل ہیں. انہیں ہم کہتے ہیں کنفاؤنڈنگ فیکٹرز. کنفاؤنڈنگ فیکٹرز یعنی ایک مین کنٹریبیوٹر ہے اور دوسرا اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ. اچھا، ٹائٹل کے بعد عام طور پہ ہم جو ہے وہ اچھا یہ ٹائٹل کو سرچ کرنے کے لیے ایک بات امپورٹنٹ ہے کہ اس ٹائٹل میں گیپ کہاں سے آپ نے تلاش کرنا ہے. جو گیپ ہے ریسرچ گیپ جو ہے لٹریچر ریویو. اب لٹریچر ریویو ہم کہاں کیسے کریں گے؟ جی صحیح. یعنی آج کل جو ہے ہمارے پاس آئی ٹی کا دور ہے، آپ لوگوں کے پاس انٹرنیٹ ایکسس موجود ہے تو بہت آسان ہے. 90s میں جب ہم ریسرچ کر رہے تھے تو ہمارے پاس انٹرنیٹ نہیں تھا. ہم لوگ کیا کرتے تھے؟ ہم جاتے تھے لائبریری میں، وہاں پہ آلریڈی ہاں جی جو پیریوڈیکلز یا میگزینز یا بکس یا تھیسز یا جرنلز جو پڑھے ہوتے ہیں شیلفز وغیرہ میں، پورے انسائکلوپیڈیا پڑھے ہوتے ہیں. تو ہم باقاعدہ لائبریرین کے پاس جاتے تھے، اپنا ٹاپک لے کے جاتے تھے اور ریلیونٹ سیکشن میں جا کے ہم ورک گردانی کرتے تھے، ہے نا. اس میں ٹائم بھی زیادہ لگتا تھا، ایفرٹ بھی لگتی تھی، پتہ نہیں کہاں پڑی ہے وہ فائل، یار 1 2 3 لگ جاتے تھے. اور اب زمانہ بہت فاسٹ ہے، آپ اپنے اسمارٹ فون یوز کر سکتے ہیں، آپ اپنے اے آئی ٹولز یوز کر سکتے ہیں. تو آپ نے فوراً جو ہے وہ ریلیونٹ سائٹس پر جو اوتھینٹک سائٹس ہیں ان پہ جانا، کیونکہ ابھی انٹرنیٹ پر بھی بے شمار ایسا مٹیریل ہے جو انریلائبل بھی ہے نا. یعنی ایسا مٹیریل بھی موجود ہے جس کو آپ ایز اے ریفرنس نہیں یوز کر سکتے، کیونکہ آپ نے جب بھی میں نے شروع میں کہا کہ ریسرچر کیا کرے گا، وہ کبھی بھی سویپنگ اسٹیٹمنٹ نہیں دے گا اور کبھی بھی ریسرچر یہ بھی کلیم نہیں کرے گا کہ یہ مینوان آخری بس یہی حرف آخر ہے، اس سے آگے نہ ایک قدم آگے نہ ایک قدم پیچھے، یہ بھی نہیں کر سکتا. یعنی سائنس خود کہتی ہے کہ میں بدلنے کا نام، ٹھیک ہے نا. سائنس جو ہے بدلنے کا نام، یعنی وقت کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ تغیرات کے ساتھ ساتھ ڈائمینشنز چینج ہوتی رہتی ہیں. کیا خیال ہے نا؟ ہم تو صرف 2 ڈائمینشن سمجھتے ہیں، کتنی ڈائمینشنز ہیں؟ اسٹرنگ تھیوری بھی ہے، وہ دیکھو سنیے، اب اسٹرنگ تھیوری ہے وہ کہتے ہیں 11 ڈائمینشنز ہیں. آئنسٹائن نے کہا تھا کہ ہم تو صرف یہ 4 ڈائمینشن میں پھنسے ہوئے نا، ایسے جائیں گے ایسے جائیں گے ایسے جائیں گے بس. مگر نہیں، ایسا نہیں ہے. اسٹرنگ تھیوری میں اسے کہا کہ نہیں، جیسے اسٹرنگ کو اگر آپ چلائے نا گٹار کو، اسٹرنگ جو ہے اب وہ کتنی ڈائمینشن ہے، اوپر نیچے دائیں بائیں اور یوں وائبریٹ بھی کرے گا. جو وائبریٹ کر رہا ہے اس کی بھی ڈائمینشن کو 11 ڈائمینشن اس نے ڈسکس کی. مگر اب بھی سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کاسمولوجی کے کہ ڈائمینشن اس سے بھی زیادہ ہے، 11 سے بھی زیادہ ہے. کئی ایسی ڈائمینشن ہیں جو ہمارے ادراک میں نہیں ہے. ہمیں فی الحال جو نظر آ رہی ہے وہ 4 ڈائمینشنز ہیں. سمجھ رہے بات؟ تو اس لیے کوئی بھی حرف آخر نہیں ہے. وقت کے ساتھ ساتھ پرنسپلز بھی بدل جاتے ہیں اور تھیوریز بھی بدل جاتی ہیں. اسٹیٹمنٹس تو بہت معمولی سی بات ہے. تو کبھی سویپنگ اسٹیٹمنٹ نہیں دینی، اور کبھی بھی آپ نے کسی دوسرے کا جو کیا کہتے ہیں کوٹ کیا ہوا مٹیریل جو ہے اس کو اپنے سے ایٹریبیوٹ کر کے نہیں دیں، جسے ہم کہتے ہیں پلیجرزم ہے. یا آپ انیتھیکل کیا کہتے ہیں کوئی بھی کام نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، غیر اخلاقی حرکت نہیں کریں گے. یہ غیر اخلاقی حرکت ہے نا کہ کسی کا ریسرچ ہے، کسی کی اسٹیٹمنٹ ہے، کسی اور کی محنت ہے، اس نے پبلش کی ہوئی ہے اور آپ اس کے کام کو کاپی کر کے اپنے نام سے پیش کر دیں کہ یہ کھانا میں نے بنایا ہے نا. ہاں جی ہوتا ہے. بات مسئلہ یہی ہے جو خاص طور پہ آج کل کی جو سوسائٹیز ہیں جو شارٹ کٹ کے پیچھے پڑے رہتے ہیں تو وہاں بھی ہوتا ہے. مگر میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. یعنی ان ایتھیکل اپروچ آپ یوز نہیں کرتے، اس کے ایتھیکل ویز موجود ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ اے آئی ٹولز یوز کرتے ہیں یا کسی کی کوئی کوڈ آپ کو یوز کرنا ہے تو آپ ریفریزنگ کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ یہ بات انہوں نے کہی ہے اور اب اس کے اندر یہ گیپ موجود تھا، اب اس کے اندر یہ میتھڈولوجی یوز کرتے ہوئے یہ اپروچ یوز کریں گے. یا پھر اگر آپ نے کوئی اسٹیٹمنٹ مینوان وہی یوز کرنی ہے تو ایگزیکٹ آپ ریفرنس دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کو ہم انٹیکسٹ سائٹیشن کہتے ہیں. انٹیکسٹ سائٹیشن بھی آپ نے کرنی ہے اور پھر اس کے بعد ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ اس سائٹیشن کی پوری ڈیٹیل دینی ہے جسے ہم ریفرنسز یا بیبلیوگرافی کہتے ہیں. تو سائٹیشن کا ایک خاص انداز ہے کہ آپ نے حوالہ کیسے دینا ہے، ریفرنس کیسے دینا ہے. ایک ریفرنس کہلاتا ہے انٹیکسٹ سائٹیشن
यानी आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं या मटेरियल्स एंड मेथड लिख रहे हैं, रिजल्ट एंड डिस्कशन लिख रहे हैं, तो अब वहाँ पर आपको ज़रूरत पेश आ रही है, फॉर एग्जांपल आपने डीएनए एक्सट्रैक्शन की है और वो की आपने सी-टैप मेथड से, तो आप बताएंगे कि डीएनए एक्सट्रैक्टेड बाय सी-टैप मेथड एज डिस्क्राइब्ड बाय वोंग एट अल 2024. लेट्स सपोज वोंग एट अल ने 2024 में लेटेस्ट सी-टैप प्रोटोकॉल बताया कि डीएनए एक्सट्रैक्शन इस तरह की जा सकती है, तो आपने प्रॉपर्ली वोंग एट अल को जो है वो क्रेडिट दिया, ड्यू क्रेडिट दिया. अब वोंग एट अल का लफ्ज़ मैंने यूज किया, एटेल कब यूज करते हैं सर जब उनके साथ कोई और काम करोगे वो कोलीग्स भी उनके साथ. शाबाश, वेरी गुड. कितने हो कोलीग? जब 2 से ज्यादा, यानी जब 2 से ज्यादा कोलीग होंगे या रिसर्चर होंगे या को वर्कर होंगे तो हम टर्म यूज करेंगे एटेल. फॉर एग्जांपल अहमद, अली और जाहिद, इन तीनों ने मिलकर कोई रिसर्च की है, अब वो पब्लिश होने जा रही है, तो किसी और 4th पर्सन ने अब उनके काम को साइट करना है, तो वो बोलेगा अहमद एट अल 2024 रिपोर्टेड दैट, या सजेस्टेड दैट, या फॉर्मुलेटेड दैट, या कंट्रीब्यूटेड दैट, या डिस्कस्ड दैट, फॉर एग्जांपल लाइक दैट. तो एट अल का वर्ड हम उस वक्त यूज करेंगे इन टेक्स्ट साइटेशन में, इन टेक्स्ट में, जब 2 से ज्यादा कोवर्कर होंगे. जब 2 होंगे तो दोनों के सरनेम यूज होंगे, अहमद एंड अली 2024 रिपोर्ट. और अगर सिंगल आता है तो उसका सिंगल ही का सरनेम यूज होगा इन टेक्स्ट में. हाँ, अलबत्ता जब आप बिब्लियोग्राफी लिखने जाएंगे, जब आप एंड में, तो डॉक्यूमेंट के एंड में जब पूरी डिटेल देते हैं रेफरेंसेस के नाम से या बिब्लियोग्राफी के नाम से, तो वहां पे आपने इसका पूरा नाम देना है, अहमद बाकायदा कौमा और बशीर जो भी, और इसका सन और इसका टाइटल, उसके बाद इसका वॉल्यूम, उसके बाद इशू, उसके बाद पेज, उसके बाद डीवाई नंबर वगैरह वगैरह सारी चीज़ें आपने देनी है. इसको कहते हैं बिब्लियोग्राफी. अब ये बिब्लियोग्राफी जो है या ये जो स्टाइल है, ये सारे स्पेसिफिक होते हैं. यहाँ पर तकरीबन 5000 से ज़्यादा तो स्टाइल है, रेफरेंसिंग स्टाइल. तो फॉर एग्जांपल APA स्टाइल आप यूज़ कर रहे हैं, मेडिकल साइंसेज वाले ज़्यादा API यूज़ कर रहे हैं, अमेरिकन सोसाइटीज जो है, तो ये API का जो स्टाइल है वो आप यूज़ करेंगे. अब मैनुअली इसको लिखना, रेफरेंसेस को मैनुअली लिखना, यानी खुद आपने अपने हाथ से टाइप कर रहे हैं अहमद, फिर उसके बाद आपने डॉट डाला, फिर उसका गिवन नेम लिखा बशीर, उसको B का कैपिटल किया, फिर आपने डॉट डाला, फिर कॉमा, फिर इज़हार अली फॉर एग्जांपल, फिर जमशेद अहमद, फिर 2024 ब्रैकेट में, फिर फुल स्टॉप, फिर उसका टाइटल, फिर उसके बाद टाइटल खत्म हुआ, फिर जर्नल का एब्रिविएट किया, जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी J और .P, फिर फुल स्टॉप, फिर उसके बाद उसका वॉल्यूम 20, फिर उसका इशू 1, फिर उसके बाद आपने उसका पेज नंबर B 11 से 16, फिर डॉट, फिर DOI. ये लिखते लिखते तो आप कितनी देर लग जाएगी एक रेफरेंस लिखते लिखते. टेक्निकली आपको जब मैनुअली आप लिखोगे तो आपको कम से कम 5 मिनट तो चाहिए ना, और जब आपने 40 से 50 लिखने हो बिब्लियोग्राफी, तो ये आपको कितना टाइम चाहिए होगा? एक दिन चाहिए होगा, ये चलो 1-2 घंटे तो चाहिए होंगे ना मुसलसल. और फिर भी जब आप उसको उठाओगे तो आपको नजर आएगा यार इसमें 10 गलतियाँ की है मैंने, किसी जगह पे मुझे डॉट डालना था वहाँ डॉट नहीं डाला, कहीं मुझे इटैलिक करना था उसको इटैलिक नहीं किया, कहीं मैंने ब्रैकेट लगानी थी वो नहीं लगाई, जर्नल का नाम तो मैंने एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखना था, सिर्फ J लिखना था, यहाँ तो मैंने पूरा लिख. आर यू गेटिंग मी? तो जब इस तरह की मिस्टेक्स होंगे मैनुअली, और होंगे लाजमी होंगे, तो इसके लिए हम एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं. बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं मगर इजी सॉफ्टवेयर मौजूद है, ऑनलाइन मौजूद है, आप उनको यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल बायो एडिट एक बहुत ही फेमस सॉफ्टवेयर है, बायो एडिट, या फिर आप यूज कर सकते हैं मेंडले, हाँ जी, या एंड नोट, यानी डिफरेंट सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं. ये मौजूद है, ऑनलाइन मौजूद है, आप आराम से, फॉर एग्जांपल एंड नोट है, 30 डेज का ट्रायल इसका आप डाउनलोड कर लें. मेंडले तो फ्री ऑफ चार्ज है, तो आप इसको डाउनलोड कर लें. इसका यानी इस सॉफ्टवेयर का एक इंटरफेस खुलेगा, इसमें 3 ऑप्शंस होते हैं लैपटॉप पर. एक ऑप्शन क्या होता है कि यहाँ पे आपने इसको इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो जाना है, सॉफ्टवेयर को आपने नेट के साथ कनेक्ट कर लेना. नेट के साथ कनेक्ट करने के बाद ये क्या करेगा, आपको डेटाबेस के साथ जो है कनेक्ट कर देगा, जो दुनिया में मौजूद रिलायबल सोर्सेज है जहां पर पब्लिश मटेरियल मौजूद है. फॉर एग्जांपल एक फेमस पब्लिश मटेरियल है पबमेड.
पबमेड पे बेशतर जो है यानी मोस्ट ऑफ द पब्लिश्ड मटेरियल अवेलेबल वो पबमेड पर है। तो पबमेड एक सर्च इंजन आप कह सकते हैं। तो पबमेड को ये कनेक्ट कर देगा एंडनोट आपके इस फंक्शनैलिटी में यहाँ पर। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर कीवर्ड्स जैसे आप देते हैं, गूगल में आप कीवर्ड्स देते हैं या गूगल स्कॉलर पे आप जाते हैं। पहले मैं आपको ये सिखा देता हूँ कि गूगल स्कॉलर सिंपल है, उसका यूज कर सकते हैं ना। गूगल स्कॉलर पे उसी तरह जैसे गूगल है, गूगल बाबा को कोई भी हुक्म दो तो वो आपको पेश कर देगा, है ना। तो गूगल बाबा जो है वो सब कुछ जानते हैं। तो इसी तरह गूगल स्कॉलर भी है, उसको भी आपको वो दो कीवर्ड दो डीएनए सीक्वेंसिंग, तो आपको 1 लाख से ज्यादा डीएनए सीक्वेंसिंग के पब्लिश मटेरियल दे देंगे। हर पेज पर 10-10 पब्लिकेशन आएंगी, ठीक है, और वो पेज जो है 100-200 से ज्यादा होंगे। आप एक एक करके पढ़ते जाएं, फिर वहां पे आपको जो रिलेवेंट आपको लगता है, जो आपको लगता है कि यार ये जो रिसर्च है इसको मैं अपनी थीसिस का या अपने डिसर्टेशन का हिस्सा बना सकता हूँ, क्योंकि इसमें मेरे से रिलेटेड मटेरियल मौजूद है, मैं इसको एज ए रेफरेंस यूज कर सकता हूँ। तो वहां पर जो है इस तरह के 2 निशान आपको नजर आएंगे साइटेशन। इसको आप क्लिक करोगे ये आपको रूट कर देगा और वो साइटेशन आप APS टाइप से डाउनलोड कर लो। एक तो ये तरीकेकार है, सीधा अंदर आपकी जो वर्ड है या उसके कंप्यूटर उधर जहाँ पर भी आप इसको रूट करोगे वहां आ जाएगा। मगर जो बेहतर तरीका है, जो प्रोफेशनल तरीका है, वो ये है कि आप इसको यूज करो एंड नोट को या इसको मेंडले को यूज करो। तो ये क्या, फॉर एग्जांपल मैं एंड नोट पे फोकस करता हूँ। एंड नोट बहुत आसान है, बहुत आसान है, यानी आसान इसलिए कह रहा हूँ कि यूजर फ्रेंडली है ना। आप लोग बहुत सही लोग हो, ठीक है। ये जो जनरेशन है ना, तबाही करने वाली जनरेशन, बहुत तेज दिमाग है। तो आप लोग जो है बहुत जल्दी सीखोगे, 30 मिनट से भी पहले आपको आसानी से समझ आ जाएगी। वरना YouTube पे इसकी वीडियोस पड़ी हुई है, वहां से देख लेना कि किस तरह एंड नोट को यूज किया जाता है। सिंपल है। तो आपने करना ये है कि आपने इसको नेट से लिंक करना है और उसके बाद आपने इसको पबमेड से लिंक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर एक विंडो दी होगी, इस विंडो में आपने कीवर्ड्स देने हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड। लेट सपोज आपने कीवर्ड दिया DNA, एक कीवर्ड है DNA। अब DNA जब आपने इसको दिया, सिर्फ यहाँ पर ये कि फिल्टर लगा हुआ। फिल्टर ये है कि वो कहेगा कि बाय ईयर ढूंढ के दूं, बाय नेम ढूंढ के दूं, ये सारे वो आप फिल्टर को सिलेक्ट कर लो कि आप सिर्फ डेविड के रेफरेंसेस ढूंढना चाह रहे हो या आप जॉन के ढूंढना चाह रहे हो या जमशेद की ढूंढना चाह रहे हो, तो ऑथर का नाम भी दे सकते हो। या आप चाहते हो कि पूरी दुनिया के जो रिसर्चर्स हैं जो DNA पे काम कर रहे हैं सबका डाटा चाहिए, तो वो तो लाखों में होगा ना। मिलियंस पब्लिकेशंस मौजूद है इस टाइम DNA के ऊपर। तो आप क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल DNA आपने कीवर्ड दिया और इसको यहाँ पर सर्च का टूल है, सर्च का बटन दबाया, ये सर्च करेगा और आपको बताएगा कि इस टाइम जो है वो 5 बिलियन रिसर्चेस मौजूद है DNA पे। तो क्या करो, और 5 बिलियन को डाउनलोड करोगे नेट के ऊपर अपने सॉफ्टवेयर में, तो तुम्हें 1 महीना चाहिए ना, है ना। वो 1 महीने बाद जितना जो हमारा नेट माशाल्लाह जितना तेज काम करता है यहाँ पे, तो इसलिए आप क्या करोगे, आप उसको कहोगे यार मुझे सिर्फ 10 जो है शुरू की 10 दे दो, उसको डाउन साइज करोगे 10 या 5। वो क्या करेगा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो सबसे लेटेस्ट रिसर्च होगी यानी 2024 की, यानी लास्ट, यानी जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लेटेस्ट जो है वो आपको 10 यहाँ पर पेज में डाउनलोड करके दे देंगे। यहाँ पर ये पेज, इस विंडो में ये 10 की 10 रिसर्चेज यहाँ आ रही होंगी। तो टाइटल भी आ रहा होगा, रिसर्चर का नाम भी आ रहा होगा, जर्नल का नाम भी आ रहा होगा, सारी डिटेल की जो आपको यहाँ चाहिए बिब्लियोग्राफी में, वो सारी डिटेल यहाँ पे आ रही है। प्लस यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट भी आ रहा होगा उसका, यहाँ पर जो उन्होंने काम पब्लिश किया उसका एब्स्ट्रैक्ट भी आ रहा है। आप उसको, अब लेट सपोज इन 10 में से आपको ये पसंद आ जाती है कि यार ये वाली जो है ना ये ठीक है, इसको यूज करता हूँ, तो यहाँ से आपने क्या करना है, इसको कॉपी करना है। इधर ऊपर एक, यहाँ पर एक ऑप्शन बना हुआ है ग्रुप के नाम से, ग्रुप, क्रिएट ग्रुप। आप यहाँ क्रिएट ग्रुप करेंगे, यहाँ पे साइड पर अपने ग्रुप का नाम, अपने ग्रुप का नाम बना लिख लीजिए, DSTCs या जो भी आप जो उस ग्रुप का नाम लिखने के बाद यहाँ पर इसको कॉपी करके इस ग्रुप पे जाके इसको पेस्ट कर दें और वहां पे अब ये सेव हो जाएगा, ठीक है। अगर आप यहीं पर इसको छोड़ देंगे तो जो कंप्यूटर बंद करेंगे तो ये सारा वो भूल जाएगा, एंड नोट वो भूल जाएगा जो आपने डाउनलोड किया था। इसलिए आपको क्रिएट ग्रुप करके उसको अपनी, इसको हम कहते हैं लाइब्रेरी बनाना, लाइब्रेरी को सेव करना जरूरी है। ये मैंने बहुत ही 2-3 सादा अल्फाज में आपको बताया कि कैसे आप एंड नोट यूज करके सर्च कर सकते हैं। यानी एंड नोट डायरेक्ट आपको पबमेड से लिंक करने का एक तरीकेकार ये है। दूसरा तरीकेकार ये है कि आप डायरेक्ट गूगल में जाएं, आप गूगल स्कॉलर में चले जाएं या बेशक गूगल में चले जाएं,
गूगल स्कॉलर पे चले जाइए या गूगल जो भी जिस भी सर्च इंजन पे आप चले जाएं, वहां से आपने ये जो साइटेशन वाले जो सिंबल है ना, इसको सर्च करना है। यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे, ये आपको कहेगा किस सॉफ्टवेयर में, तो आप उसको बता देंगे सॉफ्टवेयर एंडनोट भी इसको डाउनलोड कर दो। वो फाइल जो है वो जो लाइब्रेरी फाइल है वो एंडनोट पे डाउनलोड होकर आ जाएगी और यहाँ पर शो हो रही होगी इस जगह पर, इस कॉर्नर पर। इसको यहाँ पे ओपन करेंगे और इसको लाके यहाँ ग्रुप पे वापस डाल देंगे। इस तरह वो आपका जो दूसरा इंटरफेस है, यानी आप गूगल स्कॉलर से कर ला रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो ये दो ही हम यूज करते हैं लिटरेचर रिव्यू करने के लिए। सबसे स्विफ्ट स्टाइल है और ब्रिस्क स्टाइल, ठीक है, और प्रोफेशनल स्टाइल है। और उसके बाद क्या करना है, अब आप डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, वर्ड टाइप कर रहे हैं। जब आप एंड नोट डाउनलोड कर लेंगे अपने सिस्टम में, तो आपका जो MS वर्ड है उसके आखिर में कॉर्नर पर ये जो है एंड नोट इसका सिंबल आ रहा होगा। वर्ड की जो फाइल नहीं है, ये जो मेन्यू बार जो खुली होती है, मेन्यू बार के एंड पर यहाँ पर एंड नोट आ रहा होगा इस जगह पर वर्ड के ऊपर। तो आप इसको यहाँ से भी यूज कर सकते हैं और इसको डायरेक्ट यहाँ से, फॉर एग्जांपल कि आपने वर्ड का फाइल खोला हुआ है और आप यहाँ टाइपिंग कर रहे हैं, यहाँ पर आपको इन-टेक्स्ट साइटेशन चाहिए इस जगह पर। यहाँ पर आपको लाइक आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, यहाँ पर आपको साइटेशन चाहिए, इन-टेक्स्ट साइटेशन। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको कर्सर को इधर ही रहने देंगे। ये जो कर्सर आपका है, कर्सर इसी जगह पर रहने देंगे। एंड नोट भी आपने ओपन किया होगा और ये जो फॉर एग्जांपल आपकी एक जो लाइब्रेरी है या एक रेफरेंस है जिससे आप चाह रहे थे, इसको आप सिलेक्ट करेंगे। इधर टॉप पर इंसर्ट साइटेशन का बटन लगा हुआ है एंड नोट के ऊपर, इंसर्ट साइटेशन। आप इंसर्ट साइटेशन दबाएंगे, जिस जगह पे कर्सर होगा वो वहां पर जाके टेक्स्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर इस जगह पर वो पूरा मेन्यू बार भी आ रहा होगा। ये जो स्टाइल्स है ना, एक की स्टाइल है, जेनेटिक है, नंबर है, और यानी 5000 से ज्यादा है ना, तो वो सारे स्टाइल्स पे मौजूद है। तो आपको जो भी स्टाइल चाहिए आप उसको सिलेक्ट कर दीजिए यहाँ से। और वर्ड में भी यहाँ पर ऑप्शन होगा एंड नोट के साथ, वही स्टाइल सेम होना चाहिए। इधर भी APA रखो और यहाँ पर भी इंसर्ट करो, यहाँ पर इन-टेक्स्ट साइटेशन आ जाएगी। साथ ही इसी वर्ड के नीचे जहाँ पे आप आखिरी सफा होगा, यहाँ पर रेफरेंस भी वो खुद ही जनरेट करके दे देगा आपको। वो जो रेफरेंस आपने ये जो इन-टेक्स्ट यहाँ से इन-टेक्स्ट साइटेशन किया, उसके बाद ये वर्ड के आखिर में रेफरेंस की जो कॉलम है वो खुद ब खुद जनरेट हो जाएगी। यानी सॉफ्टवेयर आपके लिए रेफरेंस का जो चैप्टर है वो भी लिख देगा। वो चैप्टर जिसको आपने मैन्युअली लिखना था और गलतियों से भरपूर लिखना था, समझ गए? और फिर आप ये इतना आसान हो जाएगा कि आप सारी चीज पूरा डॉक्यूमेंट लिख लोगे, आपका रेफरेंस भी तैयार हो जाएगा। और उसके बाद जब कभी आपको चाहिए कि रेफरेंस का स्टाइल चेंज करना है, यानी APA की बजाय जेनेटिक्स करना है, तो आप सिंपल यहाँ से ये वर्ड में ही जाके इसके स्टाइल को चेंज कर दोगे तो रेफरेंस खुद ब खुद चेंज हो जाएंगे। आप यहाँ पे नंबर करना चाहोगे तो नंबर यानी 1 2 3 में आ जाएंगे। समझ गया मेरी बात को? अल्लाह करे समझ लो। अगर समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। डाउनलोड करें इसको जाके एंड नोट को, बहुत आसान है। इसका इस टाइम मेरे ख्याल है 9 या 11 चल रहा है, तो 9 बेहतरीन है। 6 से स्टार्ट है तो 9 मेरे पास है, तो आप इसको यूज कर ले। इसकी की भी निकल आएगी, ठीक है। पाकिस्तानियों से कौन सी चीज पीछे रह जाती है, की भी निकाल लेंगे उस पर से, क्या टॉरेंट से हम निकाल लेते थे, तो की भी निकाल लो। वरना नहीं भी निकलती तो 30 दिन के लिए ट्रायल है। वरना आसान तरीका ये है कि अपने कंप्यूटर पे जाओ, उसकी डेट पीछे कर दो, ठीक है। शॉर्टकट बता रहा हूँ, तो कैलेंडर की डेट पीछे कर दो। यार ये भी रिकॉर्ड भी हो रहा है। बारह ये मैं आप लोगों को रिसर्च के टूल्स बता रहा हूँ ना कि आप लोगों ने यूज कैसे करना है ना। मैं तो इसका करता हूँ। अभी अगर फॉर एग्जांपल पेड है तो वो क्या कहते हैं, महंगे हाँ, अभी गरीब मुल्क में हम रह रहे, क्या करेगा। अभी 150-200 डॉलर के सॉफ्टवेयर हम नहीं खरीद सकते ना, तो हम क्या करते हैं, हम उसका कैलेंडर का ईयर पीछे कर देते हैं, 1 महीने से 2 महीने 3 महीने कर दें। जब डेट पीछे होने की डेट पीछे कैलेंडर कर दो, वो एक्सपायर ही नहीं होगा, वो चलता रहेगा आपके साथ। वरना तो आप 1 महीना जो है क्या कहते हैं, 1 महीना काफ़ी होता है किसी डॉक्यूमेंट को तैयार करने के लिए, ठीक है ना। थीसिस आपने लिखना है या साइनॉप्सिस आपने लिखना है या पेपर लिखना है, कल को आपको पेपर भी बनाना पड़ेगा, पेपर पब्लिश करना है, तो उसमें भी आपके काम आएगा। आप उसको लिखें, एंड नोट से बनाएं। तो एंड नोट जब आप यानी एंड नोट से जब डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो वो आप समझ लें कि आपके कंट्रोल में होगा वो डॉक्यूमेंट, ना उसमें कोई गलती होगी, कोई मिस्टेक भी नहीं होगी। आप उसको चेक करेंगे, APA स्टाइल है तो 50 की 50 सही APA स्टाइल है। ये नहीं है कि सीरियल नंबर 3 पे मिस्टेक है या 4 पे मिस्टेक है। और ये गेटिंग भी ओके, वेरी गुड।
تو یہ ہے جناب لٹریچر ریویو کا ایک سمارٹ طریقہ، ٹھیک ہے، آج کل جیسے سرچ کر سکتے ہیں اس ایڈوانس زمانے میں، تو گوگل اسکالر یوز کیجئے، پب میڈ ڈائریکٹ یوز کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ اسکوپس یوز کر سکتے ہیں، نیچر کے آپ کی پورے لنکس ہیں، اسپرنجر کے لنکس ہیں، بایو میڈیسن کے لنکس ہیں، ہر جرنل کے نا پورے آگے سیریز موجود ہے، یا اگر اس میں نہیں جانا تو صرف اس پہ چلے جاؤ اینڈ نوٹ پہ، تو یہ آپ کو اس دنیا میں خود لے جائے گا، اینڈ نوٹ جو ہے آپ کو پبلیکیشن کی دنیا میں خود لنک کر دے گا، پب میڈ کے ساتھ لنک کرنا ہے، تو پب میڈ سے یہاں پر آپ کے لیفٹ سائڈ پہ آپشنز آ رہے ہوں گے، یہ جو 3 آپشنز ہیں نا، اس میں ایک ہے لائبریری موڈ ہے، ایک ہے انٹرنیٹ موڈ ہے، اور تیسرا ہے انٹرنیٹ اینڈ لائبریری موڈ، تو آپ نے جانا ہے انٹرنیٹ موڈ، انٹرنیٹ پہ وہ کنیکٹ ہو جائے گا، اور پھر اس پر لائبریری موڈ وہ والا موڈ ہے جس میں یہ آپ نے یہ اپنے گروپ جو ہے وہ بنانے کریٹ کرنے، لائبریریز کریٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ نے یہ ریویو کرنا ہے، اب یہ ریویو ایسے نہیں کرنا، یعنی آپ کا دل چاہ کے جمشید کی جو ہے نا ریسرچ اٹھا لی بس پسند آ گئی، ایسا نہیں ہے، آپ کی یعنی جو ٹاپک ہے، جو آپ کا جو ریسرچ آبجیکٹیو ہے، اس کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، یعنی آپ نے ایز اے ریسرچر کیا ڈھونڈنا ہے، گیپ ڈھونڈنا ہے، یہ ریویو کیوں کر رہے تھے ہم، اس کو ڈھونڈنے کے لیے، گیپ کو ڈھونڈنے کے لیے، کہ بھئی کیا گیپ ہے، آخری جو 2024 کے دسمبر یا اکتوبر تک جو بندے نے ریسرچ کی ہے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ، جو ٹاپک میں نے سلیکٹ کیا ہے، اس میں انہوں نے کہاں تک پہنچایا اس کام کو، فار ایگزامپل کووڈ کی ایگزامپل دوبارہ لے لیتے ہیں کہ کووڈ کی ویکسین کہاں تک بنی ہے، اب تک 3 اسٹرینز تک بن گئی ہے، ایسے ہی ہے نا، کووڈ 1 کووڈ 2 کووڈ 3، اب 4 کی بھی بات شروع ہو گئی ہے، الفا بیٹا گیما، اور اب چوتھی کی بات شروع ہو گئی کہ چوتھی اسٹرینز بھی آ گئی، اب ہر اسٹرین جیسے جیسے چینج ہو رہی ہے تو ویسے ویسے اس کی ویکسین بھی چینج ہو رہی ہے، کیا خیال؟ تو ابھی اگر آپ کووڈ کے ریسرچر ہے، ویکسین پہ کام کر رہے، تو گیپ کیا ہے، گیپ یہ ہے کہ 4th اسٹرین کے اگینسٹ وہ موجود نہیں، ویکسین موجود نہیں، تو ایز اے ریسرچر یو نیڈ ٹو فائنڈ ویکسین فور 4th اسٹرین، تو اب آپ ظاہر ہے جب لٹریچر ریویو کرو گے تو وہی بتاؤ گے نا، اسٹرین 3 اسٹرین 2 اسٹرین 1 پہ جو ریسرچرز نے کام کیا تھا اس کے کام کو ریفر کرو گے، ایسا تو نہیں کرو گے نا کہ کسی نے انفلوئنزا پہ یا کسی نے ایڈز پہ یا کسی اور پہ کام کیا تو اس کو لا کے یہاں پہ ڈالو گے، اس کا تو کوئی کام نہیں، irrelevant ہے، تو یو ڈونٹ نیڈ ٹو کیا کہتے ہیں give irrelevant information, you need to be very specific, you need to be correlated with the previous work and definitely you stick to the gap. اب آپ کو جب گیپ مل جائے گا تو گیپ کو آپ نے ہائی لائٹ کرنا، اس گیپ کو وہی تو مارکیٹ کرنا آپ نے کہ میرے اس گیپ کا سگنیفیکنس کیا ہے، اگر میں اس گیپ کو فلفل کر لوں گا تو اس کا سگنیفیکنس کیا ہوگا، اس کا سگنیفیکنس یہ ہوگا کہ کووڈ 4 کی ویکسین مل جائے گی، اور اس کا پھر آپ سگنیفیکنس آپ باقاعدہ گیج کرتے ہیں، یعنی اس کو ہم اکنامک تھریشولڈ اس کا کیلکولیٹ کرتے ہیں، فار ایگزامپل اگر کوئی کووڈ 4 کی ویکسین بنا لیں، لیٹ سپوز یہ بنا لیں اور یہ پیٹنٹ کر لیں، اس کو پیٹنٹ کہتے ہیں کہ ان کے نام سے رجسٹرڈ ہو جائے، کہ جناب آپ کا نام کیا، روہن نے کووڈ 4 کی ویکسین پیٹنٹ کر لی اپنے نام، تو روہن تو ملینئر ہو جائے گا نا، کیونکہ جو بھی فارماسیوٹیکل کمپنی لنک کرے گی، کوئی وہ ویکسین بنائے گی، وہ روہن سے اجازت دے گی، رائٹس اس کے پاس ہوں گے، تو یہ پھر آپ کا باقاعدہ سے ایگریمنٹ ہوگا، تو وہ ان کو جب تک یعنی آپ کی پرمیشن نہیں ہوگی تب تک وہ ڈسمینیٹ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جو بڑی بڑی مالیکولر ریسرچ پہ کام کرنے والی جو کمپنیز ہوتی ہیں وہ جو ہے وہ پیٹنٹس بناتے ہیں۔ ایک اچھا ریسرچر جو ہوتا ہے اس کا آبجیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ میرے کام کا پیٹنٹ بنے، وہ میرے نام سے، اب ایڈیسن جو ہے، ایڈیسن کا نام تو سنا ہے نا آپ نے، ایڈیسن جو ہے 100 سے زیادہ پیٹنٹس ہیں نا اس کے نام پہ، ایڈیسن، ٹھیک ہے، وہ ٹیسلا کے کتنے پیٹنٹس ہیں؟ ٹیسلا ویسے کہتے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ جینیس تھا، اسی کے پاس کام کرتا تھا ایڈیسن کے پاس، مگر ایڈیسن وہ اپنے کنٹمپریریز میں ذرا زیادہ ہوشیار تھا، تو اس کا ہولڈ بھی تھا مارکیٹ میں، اس نے اس کو ٹیسلا کی چلنے نہیں تھی، حالانکہ ڈی سی کرنٹ میں اس کا کام بہت زیادہ ہے، اگر وہ کر لیتا تو آج یہ تاروں واروں کی جھجھٹ سامنے نکل جاتا، اے سی وہاں سارا وائرلیس سسٹم ہوتا، تو بہرحال وہی کر رہا تھا بحث ہے۔ اسی طرح واٹسن اینڈ کرک جو ہے ان کے بارے میں بھی ہے کہ واٹسن اینڈ کرک نے جو ماڈل پیش کیا وہ فیبریکیٹڈ جیسے ریکارڈنگ کارڈ سے تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گیپ تلاش کرنے کے بعد آپ نے جو اگلا کام ہے وہ کرنا ہے میتھڈولوجی، ریسرچر کا اگلا کام کیا ہے میتھڈولوجی۔ اب میتھڈولوجی میں آپ نے کس پہ جانا ہے،
मतलब समझना है कि ये मेरी जो रिसर्च है वो क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है या मिक्स मेथड रिसर्च अप्रोच। और अगर क्वांटिटेटिव है तो कौन सी है, एक्सपेरिमेंटल है, क्वासी एक्सपेरिमेंटल है, कोरिलेशनल है या डिस्क्रिप्टिव है। तो मेथोडोलॉजी में आपने उसको डिफाइन करने के बाद अगला जो काम है वो है ट्रीटमेंट्स। नेक्स्ट क्या अप्रोच है, ट्रीटमेंट्स। अब ट्रीटमेंट्स में हम बात करते हैं कि आपने किस तरह रेंडमाइजेशन करनी है, ये ट्रीटमेंट्स को, सब्जेक्ट्स को किस तरह आपने, ट्रीटमेंट्स का मतलब ये है कि यू हैव टू रेंडमाइज all the subjects for the treatments, or in other words it means that all the subjects have equal chance or opportunity to receive the treatment, है ना, सबके पास एक ही जैसा चांस है कि वो ट्रीटमेंट ले सके। ये रेंडमाइजेशन की स्पिरिट है। और इसको हम यानी यहाँ पर फिर बाइफरकेट करते हैं कि क्या ये काम हम लैब में करने जा रहे हैं या हम फील्ड में करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर हम लैब में करने जा रहे हैं तो हम उसके लिए जो डिजाइन यूज करते हैं उसको कहते हैं CRD, कंप्लीट रेंडमाइज्ड डिजाइन। CRD क्या बोलते हैं, CRD मीन कंप्लीट रेंडमाइज्ड डिजाइन। फॉर एग्जांपल यू हैव 3 ब्लॉक्स। CRD डिजाइन क्या है कि आपके पास कंप्लीट रेंडमाइज्ड डिजाइन है और हर ब्लॉक पे n जो है वो 10 है और ग्रेड n जो है वो 30 है। अब ये n जो है इनको आपने किस तरह ये जो ट्रीटमेंट्स है ये दी, किस तरह दी, हाउ डिड यू असाइन द ट्रीटमेंट्स टू ईच सब्जेक्ट इन CRD। तो मोस्टली जो फेमस मेथड है वो कौन सा है, लॉटरी मेथड। लॉटरी सिस्टमैटिक यानी तरीके से आप क्या करेंगे, तमाम सब्जेक्ट्स के नाम आप जो है वो एक चिट में या उसमें बैलेट में आप रख लेंगे, लिख लेंगे और किसी और को वॉलंटियर करेंगे कि वो 1 by 1 जो है वो आपको वो चिट्स देता जाए। आपने इस ब्लॉक में भी 10 बंदे रखिए, इसमें भी 10 रखिए। यानी आपका इंक्लूजन क्राइटेरिया क्या है कि फॉर एग्जांपल आप काम कर रहे हैं ब्लड प्रेशर पे, ब्लड प्रेशर पे आप काम कर रहे हैं, लेट्स सपोज ब्लड प्रेशर में आप एक ट्रीटमेंट देना चाह रहे हैं कि 100 मिलीग्राम डोज दे रहे हैं कोई मेडिसिन है और दूसरी कोई भी अच्छी कोई व्हाटएवर मेडिसिन, अगली जो है 150 मिलीग्राम, तीसरी जो है 200 मिलीग्राम, यानी 3 ये डोजेज हैं, 3 डोजेज है किसी भी ड्रग की जिसका आप इफेक्ट चेक करना चाह रहे हैं टुवर्ड्स हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर कंट्रोल। तो इसका इंक्लूजन क्राइटेरिया ये होगा कि all the patients of hypertension will be included in the research, है ना, यही होगा ना। ज़ाहिर सेहतमंद बंदों को तो नहीं दोगे ना, जो पेशेंट्स होंगे ब्लड प्रेशर के वो आपके इंक्लूजन क्राइटेरिया होगा, नंबर 1। नंबर 2, ये सारी की सारी जो ट्रीटमेंट ग्रुप्स है दे विल बी कंपेयर्ड विद एक नॉन ट्रीटेड ग्रुप जिसे हम कंट्रोल करेंगे, T0 या कंट्रोल। ठीक है, तो ये कहलाएगा T1, ये T2, ये T3, ये T0 कहलाएगा या कंट्रोल कहलाएगा। तो कंट्रोल के कंक्लूजन में क्या होगा, ये हेल्दी वन होंगे, ये सारे के सारे हेल्दी होंगे। ठीक, जिन्हें डिजीज नहीं है, जिन्हें प्रॉब्लम नहीं है, सही एग्जैक्टली। ऑब्जर्वेशन में हमने ये हम इसलिए यूज करेंगे ताकि हम इसको कंपेयर कर सके विद दीज 3, नंबर 1। नंबर 2, ये जो ट्रीटमेंट्स हैं इसको हम आइडियली 3 बार रेप्लिकेट करेंगे। कितनी बार, यानी रेंडमाइजेशन का नेक्स्ट जो क्या कहते हैं स्टेप क्या है या उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो है रेप्लिकेशन, कि आपने रिसर्च को कम से कम 3 बार रेप्लिकेट करना है उसी सेटिंग में जिस सेटिंग में आप वो रिसर्च कर रहे हैं। और फिर अगर वही रिजल्ट आपके यानी यहाँ पर जो रिजल्ट प्रोड्यूस होंगे इसको आप कह सकते हैं कि एक थ्योरी बन गई, एक ओपिनियन बन गई, फिर आप इसको पब्लिश करते हैं। और अगर यही काम आपका किसी और जगह पर भी सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करे, सेम रिजल्ट जो कि आपने यहाँ पे पाकिस्तान में कोयटा में प्रोड्यूस किया, तो और फिर वो काम पूरी दुनिया में ही यूनिफाइड हो जाए, तो फिर वो क्या बन जाएगा, वो प्रिंसिपल बन जाएगा। फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, है ना, मेंडल्स की जो कवानीन है वो क्या है
पूरी दुनिया में उन्होंने एक ही तरह से परफॉर्म किया, तमाम रिसर्चर्स ने उसको रेप्लिकेट करके चेक किया, तो उन्होंने यही जाना कि उसकी जो फाइंडिंग है वो करेक्ट है। 9 × 3 × 3 × 1 यानी जो उसकी रेशो से कैलकुलेट